All of you can see my screen. Yes, sir. So can I start? Yes, sir. 12:06, 2:06. You know, so 6 minutes already left. Yeah. So let's start today. Today, whatever the discuss in the last day, memory interfacing, I will become later on in the memory interfacing chapter. Before that, I explain the architecture of 8085. It's a very important, and you know these questions will be definitely come in your questions paper. Means no need to see the questions paper before that you should be right. It is a very important, you know, for you. Architecture of 8085. It's a very important one, and it's a very difficult also to remember. But I explain one by one what are the functions of each, you know, arrow, each bus, all those things I will be explained. Uh, so, can you see my screen? All of you can see? Yes, sir. So let's start. Uh, how many interrupt? You know, but before I start, all of you can see my page also. You know my copy. Yes, sir. Just see, there are two type of signal. One is just like this one in this whole you know diagram, and sometimes this is like this kind of things. Sometimes this is this kind of things. More or less all those things we have these three kind of you know yeah, arrow. Am I right? All of you can see my copy. Yes, sir. Yes, There are three types of signal. One this kind of, one that kind of, and this is, and the last one is this. These two are called is nothing but a bus. These two are nothing but a called bus. These two are nothing but a bus. This is nothing but a control signal. Control signal or single bit data. Single bit data means only one bit will be transferred at a time. Only one bit will be transferred at a time. That is the function of control, right? So this is a control, this is a bus, this is a unidirectional bus, and this is a bidirectional bus. This is a unidirectional bus and this is a bidirectional bus. That is the difference of whole things. That is the difference of whole things. It is clear to all of you? Yes. Okay, very good. So remember, there are you know, this kind of arrow is available, and but you are given like that, so your you know, your diagram will be wrong. You will be get 0 marks. If this kind of arrow is available, you are given this kind of arrow, so your also your you know your marks will be deducted due to that. So every arrow there is a meaning, so you should be prepared among yourself so that there is a no mistake. Sir, just see, this is a interrupt control. Interrupt control. What does it means? All the interrupt are coming through that, and the acknowledgement are also passes through that. Just see,
there are 5 interrupt: trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, and INTR. These are the 5 interrupt which are downwards arrow. Downwards arrow means just see arrow is coming, means interrupt are coming into the microprocessor, not going from the microprocessor to other ends. Is it clear? It's One clear to second, all? sir. Hello. Just see, I'm repeat once again. Just see the 5 interrupt, whatever I'm discussing the last day: trap, RST 7.5, 6.5, RST 5.5, and INTR. These are the 5 interrupt. Interrupt means तुम लोग क्वेश्चंस करोगे हमको, माने माइक्रोप्रोसेसर के पास आएगा इंटरप्ट. So देखो, all the interrupt are enter into the microprocessor. All the interrupt are enter into the microprocessor. Arrow downwards. और सिंगल इंटर एरो क्यों? एक एक इंटरप्ट है, 2-4 इंटरप्ट नहीं है एक साथ. एक एक इंटरप्ट एक एक टाइम में आ रहा है. एक एक सिग्नल आएगा, 1-0 कॉन्फ़िगरेशंस में आएगा, बाइनरी नंबर आएगा. So that's why all the signals are, you can say control signal, or you can say any kind of 1 bit data are coming into the interrupt and control. 5 interrupt, all are interrupt enter into the microprocessor, not going from the microprocessor. सर एक इंटरप्ट अंजलि, उसका नाम क्या था? अंजलि का नाम क्या था इंटरप्ट में? INTR सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी. उसके लिए क्या था? एक चॉकलेट था, उसका नाम क्या था? INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. देखो वो तो माइक्रोप्रोसेसर से जाएगा ना, हम तो अंजलि को देंगे. तो देखो ये एरो बाहर की तरफ, तो हर एक एरो का सिग्निफिकेंट है. तुम उल्टा सीधा कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा. इट्स क्लियर टू यू? हम सिर्फ ये इंटरप्ट क्यों एरो किधर किधर है हम सिर्फ समझाया. नीचे वाला आएगा, हम डायग्राम आएंगे, मगर इसको बोलो इसमें कोई डाउट्स है कि नहीं है. इंटरप्ट मतलब आएगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट मतलब जाएगा. देखो एरो बाहर की तरफ. इट्स क्लियर? Yes, sir. कैन आई प्रोसीड? Sir, if more than one interrupt होगा तो sir suddenly. मोर देन सारा इंटरप्ट इधर से इधर आएगा, सब इंटरप्ट कंट्रोलर के पास जमा रहेगा. सर सडनली जैसे एक एक इंटरप्ट सिंगल आ रहा है सर, और सडनली जो है एक से ज्यादा आ जाए इंटरप्ट. एक से ज्यादा कैसे आएगा? 5 इंटरप्ट तुम्हारे पास है ही. तुम्हारे पास हमारे पास कितना स्टूडेंट है अभी? देखते हैं. हमारे पास अभी स्टूडेंट है 22, मतलब हमको छोड़ेंगे तो 20 स्टूडेंट है. 20 से ज्यादा इंटरप्ट आ सकता है? 20 से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकता है कोई? 20 क्वेश्चंस कर पाएगा, क्योंकि मुंह तो एक ही है. यस सर. अभी बोल सकते हो अंजलि सर लीडर है, वो ना सब जगह में मतलब दीदीगिरी दिखाता है, मतलब वो दीदी टाइप का डॉन है. तो अंजलि क्या किया ना, बीआईटी सिंधरी का सारा स्टूडेंट का क्वेश्चंस वो कर रहा है, और अंजलि इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है बीआईटी सिंधरी में दिखाने के लिए. इज इट क्लियर? तो अंजलि के पास, मगर अंजलि एक एक टाइम में बीआईटी सिंधरी का कोई स्टूडेंट का क्वेश्चंस एक ही बोल पाएगा. अंजलि चाहे तो एक मुंह से 4 क्वेश्चंस नहीं बोल पाएगा, मगर अंजलि के अंडर में 50 इंटरप्ट हो सकता है. मतलब अंजलि के अंडर में बीआईटी सिंधरी कॉलेज हो सकता है, मगर अंजलि एक एक करके ही बोलेगा. यस सर. इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर. मगर ऐसा ही अंजलि, जैसा अंजलि का नाम क्यों बोला, INTR एक इंटरप्ट है जिसके साथ तुम और भी इंटरप्ट जोड़ सकते हो. 8 इंटरप्ट, 10 इंटरप्ट, 16 इंटरप्ट, 64 इंटरप्ट. जब मैं इंटरप्ट कंट्रोलर पढ़ाऊंगा लास्ट में, तब तुम लोगों को बताऊंगा. इसके साथ भी मान के चलो कितना इंटरप्ट है टोटल हमारे पास. अभी जो देख रहे हो कितना एरर आ रहा है? 5. मगर हमको चाहिए 10 इंटरप्ट, 20 इंटरप्ट, 13 इंटरप्ट. सो कैसे होगा? तब जाकर INTR के साथ, अंजलि के साथ तब जुड़ जाएगा बहुत सारा इंटरप्ट. वो इंटरप्ट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, वो दिखाएंगे बाद में आफ्टर एंड ऑफ 8085. वो शायद सोनक सर पढ़ा देगा. ठीक है. तो इंटरप्ट एक्चुअली जो है ये INTR के साथ जुड़ जाएगा सारा का सारा इंटरप्ट.
क्लियर? यस सर। मतलब इफ यू नीड 5 इंटरप्ट सो इट विल बिकम, मगर एक एक साथ एक ही क्वेश्चन आएगा जो सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये इसके अंदर आने के बाद जिसका जो प्रायोरिटी है, किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है? ट्रैप का। ट्रैप, तो उसका इंटरप्ट पहला काम करेगा। उसके बाद आरएसटी 7.5, 6.5, 5.5, देन अंजलि, देन आईएनटीआर। क्लियर? यस सर। यस सर। सर देखो इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा इंटरप्ट आया है। इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट किया भी है। क्यों? 5 इंटरप्ट आ गया ना? समझ में आया कि नहीं? 5 इंटरप्ट आया, एक एक्नॉलेजमेंट किया, तो इधर में बहुत सारा इंटरप्ट आ गया। 5 इंटरप्ट आ गया ना? यस सर। इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल बस के साथ कनेक्टेड है। इंटरप्ट का पूरा डेटा माइक्रोप्रोसेसर में आएगा और माइक्रोप्रोसेसर से जाएगा। इसीलिए ये पूरा देखो इसके साथ बाई डायरेक्शनल बस से कनेक्टेड है। दिस इज अ बस, बाई डायरेक्शनल बस, 8 बिट इंटरनल बस, इंटरनल डेटा बस। देखो सब इंटरनल डेटा बस, ये सब सारा, कोई बाई डायरेक्शनल बस होगा, कोई भी यूनिडायरेक्शनल बस होगा। राइट? यस सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम आता है सीरियल आईओ कंट्रोल। वन इज एसआईडी जो आएगा, वन इज एसओडी जो जाएगा। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब मैंने क्या बोला था? कुछ याद है तो बताओ। डेटा सिंगल वायर में जाएगा सर। कैसे जाएगा? हाँ देखो, आई वांट टू one by one. सेंड, I want to send AB. Just see my copy. I want to send AB. AB मतलब 10101011, right? कैसे जाएगा? 1 0 1 0 1 0 1 1 लिखेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 1, ऐसे करके डेटा जाएगा। एक ही पिन से पहले ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। इसके पहले होता है स्टार्ट बीट, वो हम नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगा जब सोनक सर ने माइक्रो कंट्रोलर पढ़ाएगा तब बताएगा। इसके बाद जाएगा स्टॉप बीट, ऐसे करके जाता है। इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। राइट? इट्स क्लियर? यस सर। ऊपर में कॉपी में दाग मत काटो, तो हमको दिखाई देता है कौन दाग काट रहा है। परचेस किया हुआ है अकाउंट है, पकड़ा जाओगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सो दिस इज कॉल्ड डेटा। तो ऐसे करके जाएगा। आने के बाद किधर रहेगा? सब सीरियल आईओ कंट्रोल में रहेगा सर, सीरियल आईओ कंट्रोल में रहेगा। आज जब जाएगा एसओडी से तब भी सीरियल कंट्रोल में आएगा माइक्रोप्रोसेसर से, उसके बाद इधर से एक एक करके बिट जाएगा। इट्स क्लियर? एक एक करके बिट आएगा, इसके अंदर स्टोर होगा, फिर माइक्रोप्रोसेसर में आ जाएगा। अभी जब जाएगा फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर सीरियल आईओ कंट्रोल में आएगा, इधर से एक एक करके बिट जाता रहेगा। इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। एक एक बिट जाएगा इसलिए ऐसा एरो, एक एक बिट जाएगा इसलिए ऐसे एरो। और इधर में तो 8 बिट इसके स्टोर होगा, उसके बाद पूरा 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर में आ जाएगा और माइक्रोप्रोसेसर से 8 बिट इधर आ जाएगा। तो देखो इसलिए बाई डायरेक्शनल बस कनेक्टेड। इट्स क्लियर? यस सर। सर क्या क्या नहीं समझाया मैंने, याद रखना।
ये एरो के बारे में नहीं बोला कुछ, ये एरो के बारे में नहीं बोला कुछ, बोला कुछ? नो सर। नो सर। इसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ए है सब रजिस्टर। मैंने इधर ए आर जेड बोला था ना, ए आर एफ बोला था कि नहीं? मैंने जब रजिस्टर पढ़ाया याद है? यस सर। क्या बोला Yes, था? sir. Accumulator and flag register. Accumulator and flag registers. ये देखो ऐसा रजिस्टर्स हम बोले थे पहले दिन। सिर्फ ए और ए छोड़ के देखो, ये पूरा मिल जा रहा है, बी सी डी एच एल एस पी पी सी। देखो Yes, sir. बी सी डी ई एच एल एस पी पी सी, ब्रैकेट में 8 क्यों लिखा हुआ है, 16 क्यों लिखा हुआ है? 8 बिट एंड 8 बिट है सर। और ये क्या है? 16 बिट। 16 बिट है, इसलिए 8 और 16 लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। मान के चलो आई एम कनेक्टेड विथ सेवरल कॉलेज। जैसे तुम लोगों को पढ़ा रहा है, तुम लोगों का कोई फ्रेंड रहेगा तो पूछना रामगढ़ में भी हम पढ़ा रहा है। कोई फ्रेंड है तुम्हारा? नो सर। नो सर। है तो पूछ लेना। और भी कोई दूसरा कॉलेज में पढ़ा रहा है, तीसरा कॉलेज में पढ़ा रहा है, राइट? तो मैंने जो चीज बोलना चाह रहा हूँ, ये जो तुम लोगों को पढ़ा रहा है, तो इतना स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करना, डेटा लेना, डेटा देना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब सबके साथ हमारा एक फिजिकली सोचो, बास कनेक्ट करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट के साथ। इज वेरी डिफिकल्ट हर एक स्टूडेंट के साथ बास कनेक्ट करना, है कि नहीं? इट्स क्लियर और नॉट? बोलो। मान के चलो अभी हम कनेक्ट करना जाएंगे चाईबासा के साथ, तो ओम प्रकाश के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, अंजलि के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, दीपक के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट के साथ अलग अलग बास कनेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। तो मैंने क्या करेंगे कनेक्शन के लिए, हम बोलेंगे यू पीपल कनेक्टेड विद ओम प्रकाश, आई एम कनेक्टेड विद ओम प्रकाश। हम सिर्फ ओम प्रकाश के साथ कनेक्ट रहेंगे, ओम प्रकाश बाकी सारा के साथ कनेक्ट रहेगा। अभी बास के हिसाब से देखा जाए तो ये फायदा है। क्यों सर? हर एक के साथ, हमारे साथ डिस्टेंस सबका बहुत लॉन्ग है, मगर तुम लोग तो एक ही कैंपस में रहते हो, चाईबासा में रहते हो, am I right? तुम लोगों को Yes, जो sir. बीच में जो बसेस लगेगा वो छोटा छोटा बसेस लगेगा, यू नीड स्मॉल बस, but connection connected with me is a very long distance, long bus is required. तो इसीलिए मैंने किया मैंने कनेक्टेड विद ओम प्रकाश एंड ओम प्रकाश इज कनेक्टेड विद एवरीवन, तो बसेस जो है थोड़ा कम लग गया। उसके फायदा भी क्या है, जो भी डेटा तुम्हारा चाईबासा से आएगा, ऑल आर कमिंग थ्रू ओम प्रकाश, all are coming through ओम प्रकाश। Similarly, a W जो registers है, this is a temporary register, just see the name, temp register. We cannot use the W register. We cannot use the W register. W register is basically connected with B, D, H and the higher portion of SP and higher portion of program counter. All those data are coming through W. Similarly, रामगढ़ में भी कोई ना कोई होगा जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करेंगे, and Yes. I am connected with that particular persons, and these persons will be connected of every students of Ramgarh, means Z, like Z. That data of Z is nothing but a CEL, lower portion of SP, lower portion of program counter, all are coming through Z. W and Z we cannot use directly. It is a temporary register. Just see the temp register.
It's clear to all? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. सर ए और जेड इधर नहीं है, ए और एफ किधर है हम बाद में बताता है, क्यों है वो भी बाद में बताता है। बाकी सारा रजिस्टर्स देखो, B, C, D, E, H, L, stack pointer, program counter, and one is a increment and decrement address latch. These are not a register. These are, you know, to use for store the address, or increment or decrement the address. Just see there is a multiplexers. Which register data is selected, that will be decided. After that, all the data registers means register just, I am given an example. Register is just like a, बोलो क्या एग्जांपल दिया था हॉस्टल में? ड्रावर, कवर, वार्डरोब और कवर्ड जो बोल रहे हो, राइट? यस सर, कवर्ड बोलो, ट्रंक बोलो, कुछ भी। तो जो यू नो जो कवर्ड है, जो ट्रंक है, ऑल आर यू नो एक वन काइंड ऑफ रजिस्टर्स। और ट्रंक के अंदर तुम डेटा घुसा भी सकते हो, मतलब कोई क्लॉथ वगैरह कुछ वगैरह तुम रख भी सकते हो, उसको ले भी सकते हो, मींस वापस भी ले सकते हो, am I right? यस सर, So that's why just see, you know, there is a connected with a bidirectional bus. You can store the data into the register, or you can take the data into the register. That's why bidirectional bus is connected. It's clear? It's clear? Yes, sir. Yes, sir. Next is register select. Which register you want to select? It will be selected by this the particular positions. This particular positions. Next just see. Sir, increment and decrement address latch means here the 16-bit address is there. Here the 16-bit address is there. A0 to A15, A0 to A15. Just see there is a higher order address bus. Just see there is a lower order address bus. All are unidirectional arrow because it's an address bus. All are unidirectional arrow because it's an address. Address always unidirectional. Just see. This is a higher order address A8 to A15. This is a lower order address is a A0 to A7, which is connected with a data bus, which is connected with a data bus, and the name is address oblique data buffer. This is a data bus. So data bus मतलब क्या होता है? Bidirectional होता है? यस सर, तो डेटा बस देखो इसीलिए बाइडायरेक्शनल बस, ये देखो बाइडायरेक्शनल बस दोनों साइड में जा सकते हैं। अरे ये देखो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल। इसके बाद जो मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है, जो बस हो रहा है, क्रिएट हो रहा है AD0 to AD7, मैंने बोला भी था पहले, वो बाइडायरेक्शनल बस होगा बिकॉज इसके अंदर डेटा बस है। सो बाइडायरेक्शनल बस के अंदर यूनिडायरेक्शनल भी रहेगा। एंड जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। देखो इसमें यूनिडायरेक्शनल है, इसमें बाइडायरेक्शनल है। अभी तुम इसके उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा डायग्राम पूरा रॉन्ग। It's clear? यस सर, Can I proceed for the next? Yes, sir. Deepak, Yes, sir. what is your name? Deepak Yadav. Deepak Yadav. How you give the answer? Deepak, your mother tongue? Deepak, your mother tongue? Hindi, sir. Hindi. Hindi. Very good. Deepak, whenever I ask the questions, what is your name? First you listen very carefully. Am I right? And stored in your brain. It's a call fetching. It's a call fetching. It's a call fetching. Fetching. Yes. Then what is your name? Sir, asking my name. सर हमारा नाम पूछ रहा है। ये तुम पहले तुम्हारा लैंग्वेज में कन्वर्ट किया इन योर ब्रेन। इट्स कॉल्ड डिकोडिंग, मींस इट्स कन्वर्ट टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तुम्हारा खुद का लैंग्वेज में तुम कन्वर्ट किए हो। सो इट्स अ कन्वर्ट इन मशीन लेवल लैंग्वेज। इट्स कॉल्ड डिकोडिंग, राइट? Yes, sir. Then you are given your name Deepak Yadav, means it is execution. So every instruction have a 3-state: fetching, decoding, execution. Every instruction have a 3-state:
fetching, decoding, and execution. It's it's clear to all. Every Yes, sir. instructions have 3 states. Yes, sir. Sir, education. Fetching means just listen, means store the data, means instructions जो दे रहे हो उसको store करेगा, that is called fetching. Decoding means convert in its own language, means machine level language, it's called decoding. And execution means execution, that is you say your name. Any doubts? If you have, you can ask. डाउट्स है किसी का? 3 No, स्टेज sir. होता है, एक फेच, एक डिकोडिंग, एक एग्जीक्यूशन. ये तीनों स्टेट मिला के एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. ओके, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन. इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स में स्टोर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेचिंग. That is called fetching. Then coming into the decoding and executions. Instructions का decode and executions हो रहा है. अच्छा, तुम जो ये नाम बोला दीपक, तुमको कौन बोला बोलने के लिए? माइनर लेवल में जाकर सोचो, तुमको ये नाम मुंह से बोलने के लिए कौन बोला है? ब्रेन ने बोला. वेरी गुड. So all the output of the signal, instructions are sending to the brain. This is the brain of a microprocessor. ये जो instructions का जो काम है पूरा microprocessor brain में दे दिया, timing and control unit को दे दिया. ये है brain. It will be operate to everyone. So ये brain में दे दिया क्या करना है नहीं करना है. ठीक है दीपक, तुम्हारे पास लिए और एक क्वेश्चन है. देखो ये पढ़ाई का क्वेश्चन कुछ नहीं है, हमारा क्वेश्चन सब आलतू फालतू क्वेश्चन, ये सब में मत पढ़ो. आदमी आलतू फालतू आदमी है, पागल आदमी है. तो तुम्हारा बॉडी का कौन सा पार्ट्स तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं है? तुम्हारा ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है. ब्रेन के साथ कैसे कनेक्ट होता है? नर्व से होता है ना. Yes, sir. तो कौन सा बॉडी का पार्ट कनेक्टेड नहीं है ब्रेन के साथ? अरे नहीं होने से क्या होता है? तुम्हारा क्लास में डॉक्टर कौन है? कोई नहीं है सर. अरे डॉक्टर तक होना चाहिए. हम लोग के क्लास में तो सब बोलते थे इसको डॉक्टर, उसको नर्स, कितना कुछ नाम दिए थे. तुम लोग किसी को कुछ नर्स नाम नहीं दिए? बहुत सारा जो है ना, जो दवाई लेकर आ जाता है, चलो चलो दवा खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, उसका हम लोग डॉक्टर को बुलाते थे. तुम लोग भी ऐसा नाम नहीं दिए? सर दिए हैं सर, बट डॉक्टर जैसा कोई काम नहीं किया सर. डॉक्टर जैसा कोई काम नहीं किया तो उसको पूछते थे हम कौन सा बॉडी का पार्ट्स नहीं कनेक्टेड है. पैरालिसिस का नाम सुने हो? पैरालिसिस. यस सर. व्हाट इज द Yes, sir. पैरालिसिस? पैरालिसिस मींस जो नर्व कनेक्टेड है बॉडी के ब्रेन के साथ, वो पार्ट, वो नर्व एक्चुअली काम नहीं करता है और कट जाता है. इसीलिए वो बॉडी का उस पार्ट्स में कोई मतलब सेंस नहीं रहता है ना. उसको तुम चाहोगे राइट हैंड उठाओ तो नहीं उठा सकते हो. क्लियर? यस सर. मतलब नर्व पूरा बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है, ब्रेन के साथ सारा कुछ कनेक्टेड रहता है. ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है बॉडी का जो नर्व के साथ कनेक्ट, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्टेड नहीं है. नहीं रहेगा तो इट इज ए कॉल्ड पैरालिसिस. इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. माइक्रोप्रोसेसर को पैरालिसिस नहीं करना है, कर दोगे तो Yes. गलत नंबर नहीं मिलेगा. इसीलिए देखो ये सब सिग्नल है नर्व, ये जो सिग्नल है नर्व जो सब के साथ कनेक्टेड है, जो सब के साथ कनेक्टेड है. ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके साथ कनेक्टेड नहीं है. ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके साथ कनेक्टेड नहीं है. सबको ये सिग्नल दे रहा है, सबको ये सिग्नल दे रहा है. देखा, ये है नर्व, ए लाइन एंड ए लाइन है, पूरा सब के साथ कनेक्टेड है.
मतलब जितना माइक्रो प्रोसेसर के जितना ब्लॉक्स है सब में कनेक्टेड है। कनेक्टेड नहीं रहेगा तो वो पोर्शन काम नहीं करेगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, तुम sir. लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ोगे तो काम नहीं करेगा। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. कैन आई प्रोसीड? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये है एक्यूमुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज द एक्यूमुलेटर, ओके। एक्यूमुलेटर को, अच्छा ये पहले बोल देता है, ये सिग्नल के बारे में पहले बोल देता है, उसके बाद ऊपर में जा रहे हैं हम। देखो पहले है पावर सप्लाई इज +5 वोल्ट एंड ग्राउंड। ये पावर सप्लाई देना पड़ता है, इसलिए मैंने दिखाया। X1 एंड X2 कनेक्टेड विद द क्रिस्टल क्लॉक देने के लिए। क्लॉक आउट सिग्नल जो बाहर में सबको क्लॉक देता है, मतलब तुम लोगों का स्पीड कैसा होगा वो डिपेंड करेगा, और X1 एंड X2 से हमारा कितना स्पीड होगा उसको डिपेंड करेगा। मतलब माइक्रोप्रोसेसर में क्लॉक देने के लिए X1 एंड X2 है, और माइक्रोप्रोसेसर जो सारा पेरिफेरल को क्लॉक देगा वो डिपेंड करेगा क्लॉक आउट के सिग्नल के ऊपर। रेडी सिग्नल मैंने क्या बोला? रेडी सिग्नल क्या बोला? इट सेंस whether the slower peripheral is ready or not. Ready signal is high, then microprocessor send another data, otherwise microprocessor wait till it is high. तो ready signal अंदर की तरफ आएगा। देखो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल जो मैंने पढ़ाया था, सारा का सारा आउटपुट है, ये स्टेटस है, दिखाएगा कैसे क्या है। देखो इसलिए सब आउटपुट है, रीड बार, राइट बार, ALE, S0, S1, I ऑब्लिक M बार, सारा का सारा स्टेटस है। ओके। होल्ड given by the DMA controller, देखो ऊपर में DMA लिखा हुआ है, so hold is coming, incoming, and HLDA जो बास हमको रिलीज करने बोल रहे हैं, हम रिलीज करने के बाद देंगे, इसीलिए HLDA is output। रीसेट के अंदर दो है, एक रीसेट इन जो रीसेट माइक्रोप्रोसेसर को करने के लिए, और रीसेट आउट अभी माइक्रोप्रोसेसर रीसेट है ये समझाने के लिए। ये है टोटल पिन, हर एक का एरो का मीनिंग्स है, सो एरो इधर उधर उल्टा पुल्टा मत कर देना, तो मुश्किल हो जाएगा। कंप्लीट? Yes, sir. Can I proceed for the next? ये पोर्शन बाकी है अभी, ये छोड़ के बाकी कोई जगह में कोई क्वेरीज है? सिर्फ कोई क्वेरीज है? No, sir. Yes, sir. नो सर। ठीक है। पहला दिन मैंने बताया था एक्यूमुलेटर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर्स। बोलो तो क्या काइंड ऑफ रजिस्टर, क्यों इसको स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर बोलते हैं? एक स्टोरी भी सुनाया था तुम लोगों को, एक्यूमुलेटर जस्ट लाइक ए योर वन रजिस्टर के साथ कंपेयर किए थे। बोलो। लाइक पार्स सर। लाइक पार्स। कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट पार्स पॉसिबल है? नो सर। सो एक्यूमुलेटर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस। accumulator is a maximum responsible to any kind of arithmetical logical operation। सबसे ज्यादा एक्यूमुलेटर का यूज होगा। तुम दोनों डेटा का एडिशन करना चाहते हो, एक कॉमन एक्यूमुलेटर। दोनों डेटा का सब्सट्रैक्शन करना चाहते हो, एक कॉमन एक्यूमुलेटर। तुम कोई मेमोरी लोकेशन से डेटा लेकर आ सकते हो, वो भी एक्यूमुलेटर कॉमन। तो एक्यूमुलेटर इज अ कॉमन फॉर एवरीवेयर, स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्टर्स। दैट्स व्हाई एक्यूमुलेटर इधर देने से थोड़ा स्पीड घटता था, इसको अलग से दिया, इसको स्पीड बढ़ाने के लिए, माइक्रोप्रोसेसर को स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो एक्यूमुलेटर को अलग दे दिया, इज वन काइंड ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर मतलब बाई डायरेक्शनल बस इज कनेक्टेड। रजिस्टर मतलब बाई डायरेक्शनल बस इज कनेक्टेड, राइट? जस्ट सी द डेटा आर डायरेक्टली passing into the ALU. The data are directly passing to the ALU. Full form ALU, full form arithmetical logical unit। कोई भी एडिशंस, कोई भी सब्सट्रैक्शंस करो सब ALU से। दीपक 2 + 1 कितना होता है? 3, sir.
सर कैसे बोला? माइन्यूटली सोचो, पहले 2 को ब्रेन में डाले, उसके बाद 1 को Yes. ब्रेन में डाले, brain adding these two number 2 plus 1 that is 3 and giving the answer, right, and giving the answer. So all the data first coming into the ALU will done the additions, then you are getting the result. So one data are coming through that directly from ALU. डायरेक्टली ALU से सबसे ज्यादा आता है तो डायरेक्ट कर दिया। दूसरा डेटा कौन सा? रजिस्टर्स, मान के चलो B रजिस्टर से लेना है, तो A कंट्रोल सिग्नल बोलेगा रजिस्टर सिलेक्ट को B को सिलेक्ट करो, B सिलेक्ट करने से मल्टीप्लेक्सर बोलेगा तुम भेज दो टेम्प रजिस्टर्स। टेम्प रजिस्टर मतलब इधर एक टेम्प रजिस्टर है टेम्पोररी डेटा स्टोर करने के लिए। here temporary data store, either you cannot get the data from temp register, only are storing for the purpose of few seconds or few microseconds. So that's why the data is arrow is a unidirectional, stored into the B and coming into the ALU. So B data are passes through this bus and enter into the ALU. So ALU में additions होगा, रिजल्ट फिर चला जाएगा इधर से जाकर, फिर इधर से जाकर, फिर इधर से जाकर, फिर इधर से जाकर, फिर इट्स क्लियर? हम फिर से बोल रहा हूं, तुम किए हो ऐड बी, ऐड बी मींस A plus B, so A data are coming through that. इधर में एक टाइमिंग एंड कंट्रोल बोलेगा B रजिस्टर को सिलेक्शन करने के लिए, B डेटा को भेजने के लिए, B डेटा को भेज देगा, ये ALU को बोलेगा एडिशंस करो, तो ये B डेटा इधर से चला जाएगा सीधा इधर, फिर इधर से आकर इधर एडिशंस करेगा, फिर इधर से सीधा रिजल्ट चला जाएगा ALU में, एक्यूमुलेटर में। इट्स क्लियर टू ऑल? It's clear? Yes, sir. It's clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, I coming into the flag registers. सर देखो, आलू कितना बिट का है याद रखना, कितना बिट का है? 8 bit. 8 bit. 8 bit. एक्यूमुलेटर कितना बिट का है? 8 8 bit. bit. टेम्प रजिस्टर भी 8 बिट का है, क्योंकि इधर में सारा रजिस्टर 8 बिट का ही है, तो 8 बिट का डेटा इधर टेम्प रजिस्टर में स्टोर कर सकता है, इसीलिए 8 बिट। नेक्स्ट है फ्लैग रजिस्टर्स। कितना फ्लैग बिट है मैंने तो पढ़ाया था, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, क्या क्या था? Carry flag, auxiliary carry flag, zero flag, sign flag. और एक Parity flag. Parity पैरिटी फ्लैग। कितना हुआ? 5. 5. इसलिए 5। इट्स क्लियर? Yes, sir. फ्लैग रजिस्टर का हम एक स्टोरी बताया था, एक बार बता पाओगे क्या स्टोरी बताया था? रेलवे स्टेशन लेकर कैरी फ्लैग का क्या स्टोरी बताया था? क्या है कैरी फ्लैग? कॉलेज का फैकल्टी लेकर भी बता सकते हैं। बोलो, फ्लैग रजिस्टर्स क्या है? बोलो। अरे चुपचाप रहने से नहीं होगा, बोलो तो सही। याद नहीं है तो याद नहीं है, बोलो। तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है बोलो ना थोड़ा बहुत। सर। आप बताए थे कि जैसे अगर सर्च करना है किसी टीचर को तो उनके ऑफिस में जाकर देख लेते हैं इन है आउट है, उसी टाइप का फ्लैग मतलब रजिस्टर। हाँ एकदम करेक्ट बोला। एक टीचर का बोर्ड रहेगा, हर एक टीचर का नाम रहेगा, उसमें इन और आउट लिखा हुआ रहेगा। इन में होगा तो सर है, आउट में है तो सर कैंपस में नहीं है, मतलब ऊपर में नहीं है, एटलीस्ट ऊपर फ्लोर में नहीं है, तो सर को ढूंढने का जरूरत नहीं है। एम आई राइट? यस सर। तो
सर किधर है पता है? जो इन होगा तो किधर है सर? कैंपस में ही होंगे। ना ना ना, इन है मगर मान के चलो मैकेनिकल बिल्डिंग में हो सकता है, मान के चलो सिविल बिल्डिंग में हो सकता है, मान के चलो एडमिन बिल्डिंग में हो सकता है, वो तो देख के नहीं पता चल रहा है ना। नहीं, सिर्फ स्टेटस जान पा रहे हो, स्टेटस पता चलेगा और कुछ नहीं। इसीलिए देखो ये जो रिजल्ट होगा इसका पूरा रिजल्ट फ्लैग रजिस्टर में नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई फ्लैग रजिस्टर सेट और रिसेट होगा, इसलिए दिस एरो इज देयर। कोई फ्लैग रजिस्टर सेट और रिसेट होगा, इसलिए ये एरो इज देयर। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। कोई भी फ्लैग रजिस्टर का सेट और रिसेट करने के लिए यूज होगा। मैं तुम लोग को एक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, कॉपी में हम लिख रहे हैं ADCB। व्हाट डज इट मीन? इट्स नथिंग बट A is equal to A plus B plus CY। मतलब पिछला वाला जो कैरी फ्लैग यूज्ड हुआ था उसका डेटा भी एडिशन हो जाएगा, A plus B plus CY। D is nothing but a कैरी फ्लैग। मतलब कभी कभी फ्लैग रजिस्टर्स का कंटेंट भी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आता है फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, फॉर एडिशंस और सब्सट्रैक्शन और एनी अदर रीजंस। दैट्स व्हाई दिस एरो इज आल्सो देयर, दैट्स व्हाई दिस एरो इज आल्सो देयर। इट्स क्लियर? यस सर। ये एरो गलत है, ये एरो गलत है, तुम लोग गलती मत करना। ये गांव कर में गलत है, आज से नहीं 20 साल से चल रहा है। ये एरो बाई डायरेक्शनल होगा, ऐसा होगा। इधर में भी एरो होना चाहिए। तुम लोग जब करोगे इसको भी इधर एरो दे देना। फ्लैग रजिस्टर ये सिर्फ एक गलती है। ये फ्लैग रजिस्टर्स जो है, ये जो फ्लैग रजिस्टर्स है, यू नो फ्लैग रजिस्टर्स, ये फ्लैग रजिस्टर्स तुम्हारा यू नो जो एरो आई वांट टू गिव, व्हाई आई डोंट गिव एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस फ्लैग। कभी कभी क्या करते हैं ना हम लोग, कभी कभी हम लोग ये जो फ्लैग रजिस्टर्स का कंटेंट है, इट कैन बी कॉपीड टू एनी पर्टिकुलर प्लेसेस। हम कोई भी जगह में इसको कॉपी कर सकता हूँ, इसको कोई भी जगह में हम कॉपी कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर द डेटा इनटू एनी मेमोरी लोकेशंस। फ्लैग रजिस्टर्स का पूरा कंटेंट कॉपी करके लेकर आ सकता हूँ। और कभी कभी फ्लैग रजिस्टर्स में कंटेंट फिर से वापस लाकर रख सकता हूँ, जो वापस रखने के लिए जगह इधर नहीं दिया है, इसीलिए ये एरो बाई डायरेक्शनल पास होगा। पुश पॉप ऑपरेशन से ये फ्लैग रजिस्टर्स कंटेंट कॉपी करके मेमोरी लोकेशंस में लेकर जा सकते हैं और मेमोरी लोकेशन से फ्लैग रजिस्टर्स में लेकर आ सकते हैं, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल बस इज कनेक्टेड। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? नहीं Yes, सर, sir. एक बार फिर से। वो जो तुम जो बोल रहा था ना फैकल्टी का लिस्ट है, मान के चलो एज आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कॉलेज, सो वो फैकल्टी लिस्ट हमको चाहिए जो कौन है कौन नहीं है। तो मैंने क्या बोलूंगा, दीपक तुम जो बोर्ड है ना वो उठा के लेकर हमारे पास आ जाओ, मतलब मेमोरी लोकेशंस के पास आ जाओ। दीपक उठा के लेकर आ गया, कुछ देर मैंने देखा, उसके बाद बोला दीपक फिर वापस उसको जगह में रख दो, स्टूडेंट लोग दिख नहीं पाएगा। तो दीपक फिर से जाकर उसको स्टोर कर दिया, मगर उसको पूरा डेटा को हम ले सकता है अंदर और हम फिर से वापस उधर भेज सकते हैं। तो इसीलिए बाई डायरेक्शनल बस से कनेक्टेड फ्लैग रजिस्टर्स का जितना कंटेंट है ये मेमोरी लोकेशंस में जा सकता है और मेमोरी लोकेशन से फिर से फ्लैग रजिस्टर्स में आ सकता है यूजिंग पुश पॉप ऑपरेशंस। हम जब पढ़ाएंगे इंस्ट्रक्शंस तब बताएंगे फ्लैग रजिस्टर कंटेंट कैसे मेमोरी लोकेशंस में जाता है। यूजिंग पुश ऑपरेशंस करने से फ्लैग रजिस्टर कंटेंट जाएगा मेमोरी लोकेशंस में और पॉप ऑपरेशन करने मेमोरी लोकेशन से फ्लैग रजिस्टर में आएगा। इसीलिए ये बस बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों साइड में होगा। क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर। Yes, sir. इसका 10 बार पिक्चर तुम लोग को ड्रॉ करना है। अभी तो बोलो तो क्यों ड्रॉ करना है, बोलो। ड्रॉ करके हम लोग को याद हो जाएगा सर कैसा पिक्चर होना है। 10 बार ड्रॉ करेंगे तो ये याद हो जाएगा। अच्छा
इसीलिए तुम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक ही बोला। तो चलो अभी देखते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग। मेमोरी इंटरफेसिंग भी होमवर्क दिया है ना, सब बनाया कोई? शौनक बोलो। Sir, actually, I didn't give it to them right now. Okay, sir. So by the end of today's class, I'll give the assignment to them. Oh, till now not given। No, till now not given. सर आप जैसा टीचर रहेगा तब ना जाकर हमारा काम बनेगा। So actually, they are having their internal examinations in You the coming week. are very very good teacher सर। तुमको तो स्टूडेंट लोग सर में उठा के रखेगा, हमको मगर ऐसा टीचर मिला नहीं आज तक। क्या सर समझ में आया? तुम एकदम स्टूडेंट के लिए एकदम कुछ भी कर दे रहे हो। वही तो देखा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तुम उसको होमवर्क ही नहीं दे रहे। I'll give by the end of today. मगर आज पकड़ा जाएगा, ऐसा पूछेंगे जो क्या किए हो नहीं किए हो, तो सेफगार्ड कर दिया है ना। नहीं ऐसा एक्चुअली उन लोगों का नेक्स्ट वीक में इंटरनल एग्जाम भी है, तो अप टू टुडेज क्लास यही सिलेबस रहेगा। ओ इसके बाद मंडे क्लास नहीं होगा? मंडे एक्चुअली इन लोगों का एग्जाम है। तो एग्जाम है तो क्या होगा, एग्जाम भी होगा। हाँ मतलब मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लगातार तीन दिन है, टोटल 6 एग्जाम। अच्छा तो हमारा क्लास 7 बजे से हो जाएगा इवनिंग में, मतलब वेडनेसडे में। मंडे ये नहीं हो सकता है 7 बजे से? स्टूडेंट लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो लोग राजी है? नहीं सर, प्रॉब्लम होगा सर हम लोग। सच्ची सच में चीज है भाई, सैल्यूट यू सैल्यूट। जब भी बोला मैंने स्टूडेंट लोग कुछ नहीं बोल रहा, देखा बोलना शुरू हो गया। यस देखा ऐसा दवाई है। ठीक है वो सब होमवर्क कर लेना, होमवर्क से क्वेश्चंस आ सकते हैं। and the submission date will be within the next Friday. ओके Okay sir. क्वेश्चंस क्या हम करें? इंटरनल का? हैं? Yes sure. Why not? हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। स्टूडेंट लोग क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट लोग सही कर दे क्या हम कर दे? सर जो भी बनाइए थोड़ा इजी बनाइए सर। ओह इजी बनाएंगे। मैंने बोला ना पहला दिन हम थोड़ा बहुत जानते हैं, मगर एक दिन थोड़ा ज्यादा हमारा ज्ञान आ जाता है। कौन सा दिन? एग्जाम के दिन। एग्जाम के दिन वही तो हमारा हो जाता है प्रॉब्लम। तो सर सोनक सर ही बनाना। सोनक सर बना देते हैं। यस सर बना देते हैं। पढ़ाया हाँ मैं सोनक सर बना देगा। ठीक है सर, आप ही बना दीजिए। आप ही बना दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ हम ही बना देते हैं, तुम लोग सब कर पाओगे। सोनक चीटिंग अलाउड? Not allowed. पकड़ा जाएगा तो हमको देना, उसका नाम और रोल नंबर दे देना। ठीक है? ओके ओके। और कॉलेज में सबसे जो अच्छा गार्ड देता है उन लोगों को लगाना इन लोगों के पीछे। वो गार्ड फट तो कुछ नहीं होगा, अब तो ऑनलाइन है। हाय गोपाल अभी तो
चलो, तो क्वेश्चन ऐसा बनाना पड़ेगा जो ओपन बुक एग्जाम हो, है ना सोनक? Yes, sir. तो क्वेश्चंस थोड़ा टफ बनाना पड़ेगा, जैसे बुक में ना मिले, टफ नहीं सर, अगर ट्रिकी रहेगा तो बुक में ना मिले। बुक में मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगा ना, और गूगल नहीं सर, भगवान तो तुम लोगों के पास है ही, सर आप जो पढ़ाए हैं उससे दे दीजिएगा सर। उससे ही देंगे, मगर वही थोड़ा बहुत हमारा मतलब घुमा फिरा के आएगा, है कि नहीं? हाँ सर। वाह, चलो देखते हैं। आर्किटेक्चर के 10 पिक्चर बनाना पड़ेगा, सो इट इज आवर माय होमवर्क, बिकॉज होमवर्क ऐसा भी कोई कुछ भी देंगे तो तुम लोग तो कॉपी मारते रहोगे, एक जन बनाएगा दूसरे पास कॉपी। हाँ, तो हम ऐसा नहीं चाहता है, हम चाहता है कॉपी मारो, किंतु कॉपी मारने से तुम लोगों का डेवलपमेंट हो, कुछ फायदा हो। तो इसीलिए मैंने यही पिक्चर दिया 10 बार, सो दैट you will be remember this picture so you can easily draw in a examinations। मैंने तो सारा एक्सप्लेन किया, हर एक का एरो का अलग अलग मीनिंग है, तुम लोग देखे हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो हर एक एरो तुम इधर उधर कर दोगे तो पिक्चर गलत, तो एरो एरो ना हो, इसलिए मैंने सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग यूजिंग डिकोडर। डिकोडर, एनीवन इज नो डिकोडर? व्हाट इज डिकोडर? ऑपोजिट ऑफ एनकोडर मत बोलो। हाँ, डिकोडर इज ऑपोजिट ऑफ एनकोडर, बोलो व्हाट इज डिकोडर? सर जो किसी भी डाटा के लैंग्वेज को डिकोड करता है सर। ओ वाह वाह, क्या डेफिनेशन दे रहे हो भाई, कुछ भी एक बोल दो ना, डिकोड करता है तो उसका डिकोडर। डिकोडर पहला चीज है, उसका n इनपुट रहेगा तो 2 टू द पावर n आउटपुट रहेगा। देखो n इज नथिंग बट ए 3, तो 2 टू द पावर 3 क्या होता है? 8। 8, तो 8 will be the output, that's why 3 cross 8 decoder, that's why 3 cross 8 decoder, 3 input to 8 output। It's clear to you? It's clear all of you? Sir, repeat, sir. जितना इनपुट रहेगा, इधर वाला इनपुट इधर वाला आउटपुट, जितना इनपुट रहेगा 2 टू द पावर n उतना ही आउटपुट रहेगा। Yes, sir. n मतलब क्या है? 3, so 2 टू द पावर 3 मतलब क्या है? 8, 8 will be the output। Is it clear? Yes, sir. यस सर। नेम है A, B and C। सर 2 होगा तो 2 क्रॉस कितना होगा? 4, सर 4 क्रॉस 16, 5 क्रॉस 32। ये होगा टोटल, यू नो, डिकोडर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो आउटपुट क्या है? इट्स y0 से लेकर y7 तक, ओके, 8 आउटपुट। क्लियर? यस सर। You know, every pins say connected with a LED। Okay, LED symbol is different with diode. There is a LED, light emitting diode। It's clear? Is it clear to everyone? यस सर। सर डायोड के नीचे क्या ड्रॉ किया? ये यस सर।
ये है लाइट एमिटिंग सिंबल। ओके सर, डायोड एंड एलईडी सिंबल में दोनों में डिफरेंस है। दिस इज द लाइट एमिटिंग सिंबल। तो ये लाइट एमिटिंग सिंबल सिर्फ होता है एलईडी में, डायोड में नहीं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड डायोड इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक रेजिस्टेंस देगा, ग्राउंड किया है। अभी एक टेबल बनाएंगे CBA, तो क्या दिखेगा 0 0 0, कौन सा सिलेक्ट होगा Y0, 0 0 1 क्या होगा Y1, ऐसे करके 1 1 1 कौन सा होगा Y7। इट्स क्लियर? यस सर, क्लियर टू ऑल? इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर, देखो ये 0 0 0 देने से Y0 विल बी सिलेक्टेड। ओके, मतलब क्या है, इफ आई एम गिवन 0 0 0 over here, then Y0 LED will be glow. Selected means it is will be 1. 1 means in digital it will be 5 volt. So Y0 LED will be glow. Rest all the LED will be remain off. If I am given 0 0 1, then Y1 LED will be glow. Rest all the LED will be remain off. If 0 1 0, then Y2 LED will be on. Rest all other LED will be off. It's clear to all of you? यस सर, So, as if in these fashions, LED will be on or off. LED will be on or off. It's clear? So, what are the rules number 1 for using the NAND gate? कौन बोलेगा? ये मनिका बोलेगा। Monica, why we are using the NAND gate? Rule number 1. Yesterday I am discussed. मोनिका और ऑन ही नहीं होगा। मोनिका ऑन करो खुद को, म्यूट अनम्यूट Yes, करो। sir. करेगा ना, होगा तो ना बोलो जी सर भूल गया है। ऑफ करके फायदा क्या है? बोल पाओगे? देखो अभी ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो स्टूडेंट 20 से घट जाएगा, हमें नहीं चाह रहा है। जो होगा वो बोलो। रूल नंबर 1 क्या था? याद है ना? हम फिर से बोल देंगे। Why using NAND gate? रूल नंबर 1। सर बोले सर, बोलो। क्योंकि सर इसमें एक ही जीरो आउटपुट मिलता है सर। एक ही जीरो आउटपुट मिलता है, और थोड़ा डिटेल्स में बोलना पड़ेगा। ओनली वन कंडीशन वी आर गेटिंग द जीरो आउटपुट। ओनली वन कंडीशन वी आर गेटिंग द जीरो आउटपुट। एम आई राइट? यस सर, इट्स क्लियर Then टू both यू? the inputs are high. स्वाति बोलो। So when both the inputs are high. With the both the inputs are high. ए मोनिका को ऑन करने बोला था, मोनिका चला गया क्या? ए क्या है रे भाई? मोनिका है क्या? नहीं है? पूछना नहीं चाहिए था। बोलो क्या बोल रहा था स्वाति? स्वाति बोलो, Yes, sir. क्या बोल रहा था तुम? So when both the inputs are one, that means high. Then That means we will high, get the zero it will be output. 0. Means only one condition we are getting the 0 output. But over here you see only one condition we are getting the 1 output. एक कंडीशन में एक को 1 हो रहा है, हमको चाहिए एक को 0 होने का, मगर बाकी सारा 0 हो जा रहा है। कंडीशन नंबर 3 क्या था? अरविंद बोलो, कंडीशन नंबर 3 क्या था? सर यूनिवर्सल गेट होना चाहिए था। नो अरविंद, इट्स अ 2, नंबर 2। नंबर 3 और गेट में मिलता है सर। ना, ऑर्गेट में तो मिलता था, इसीलिए तो यूनिवर्सल गेट हुआ तो निकल। सर ड्यू टू एड्रेस बस इज कंसर्न, सो नॉट गेट इज कंसर्न।
नॉट गेट शुड बी कनेक्टेड, नॉट गेट होना चाहिए, नॉट गेट इज प्योरली यूनिडायरेक्शनल। सो दैट्स व्हाई इधर देखो हम लोग अभी जो करेंगे डिजाइन, सारा को सारा नॉट गेट देके डिजाइन करेंगे, सारा को सारा नॉट गेट देके डिजाइन करेंगे। मान के चलो ये y3 है, सारा का सारा y3। अभी बोलो तो 0 0 देने से क्या होगा सर? सारा नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट डिकोडर। अभी 0 0 देने से क्या होगा? पहले 0 0 देने से क्या हो रहा था? ऑन हो रहा था सर, कौन सा ऑन हो रहा था? y0। y0। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? y0 ऑन हो रहा था, बाकी सारा ऑफ था। यस सर। अभी क्या होगा? उल्टा होगा, नॉट गेट लगाया, ऑफ हो क्या जाएगा, होगा बोलो? ऑफ हो जाएगा, जीरो आएगा। y0 ऑफ हो जाएगा सर, y0 ऑफ और रेस्ट ऑन। रेस्ट ऑन। अभी सिर्फ ये नहीं जलेगा, बाकी सारा एलईडी जलेगा। अभी इसमें 0 आएगा, हमको जो चाहिए था। तो हम लोग जो डिकोडर यूज करेंगे, तो यही डिकोडर हम लोग यूज करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग में, यही डिकोडर हम लोग यूज करेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग में, राइट? इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। कैन आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? यस सर। अंजलि, तुम्हारा नींद आ गया क्या? चुपचाप है एकदम, कुछ बात नहीं कर रहे हो। विजय चुपचाप, दीपक, गौतम आज के एकदम बात ही नहीं किया, प्रीति कुमारी कुछ बात नहीं किया, पूजा तो कभी करता ही नहीं है, राहुल कुमार भी एक ही हालत है। क्या हुआ तुम लोगों को? आंसर भी चुपचाप। एग्जाम का टेंशन है सर। एग्जाम का टेंशन? टेंशन में क्या कर रहे हो? जल्दी सो जा रहे हो, लेट में उठ रहे हो क्या? नो सर। नो सर। कुछ बोलो, नहीं तो मुश्किल हो जाता है हमारा। हमको लगता नहीं है तुम लोग समझ रहे हो, ऐसा तो तुम्हारा फेस नहीं देख पा रहे। हम फेस देख के डिटेक्ट करता है कौन सा स्टूडेंट समझ रहे हैं, कौन सा नहीं समझ रहे, मगर आज फेस भी नहीं दिख पा रहे। मतलब तुम लोग हम पता नहीं चल रहा है तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर भी समझ रहे हैं सर। अभी तुम लोग कुछ बोलेगे भी नहीं तो हमको क्या लगेगा, हमको बेकार हम बकबक कर रहे हैं नहीं सर, समझ रहे हैं ना। बाकी सारा को थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना चाहिए ना, हाँ ना कुछ बोलो तो ठीक लगेगा। आंसर ही समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चुपचाप क्यों हो? समझ सुन रहे सर। सुन रहे से क्या होगा? ये क्या कीर्तन है? ये सुनोगे? हम क्या समझ कीर्तन रहे कर रहे सर। हैं? सुनोगे? सुन रहे, सुनने से क्या है? आंसर करना पड़ेगा ना। यस सर। क्लास चल रहा है भाई, कीर्तन नहीं जो हम रेडियो नहीं चला के रख दिया, जो रेडियो चल रहा है तो चल रहा है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा ही चल रहा है, रेडियो जैसा टाइप का तो चला दिया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। क्या मोनिका सही बोल रहा है कि नहीं? मोनिका ऑन होने में 1 घंटा लग जाता है, रहता ही नहीं है। वो भी रेडियो ऑन करके छोड़ दिया है क्या? मोनिका तुम हमारा बात सुन, तुम हमारा बात सुन रहे हो क्या ना नहीं सुन रहे हो? सर सुन रहा है। सुन रहा है क्या? ऐसा रेडियो टाइप का ना ऐसा समझ रहे हो? सर समझ रहा है। जैसे पूजा और रेडियो टाइप का सुन रहा है, वो बोल ही दिया है सर हम रेडियो बना के रख दिया, रेडियो जैसा चल रहा है हमारा भी, आपका क्लास भी ऐसा चल रहा है। No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमको ही समझ में नहीं आया, आज तक तुमको आ गया? कैसे पॉसिबल है भाई? सर 8085 डिप्लोमा में भी पढ़े हैं थोड़ा सा। वाह, तो बोलना चाहिए तुमको। तो अभी आज से 10-20 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ना पूजा?
नो सर, अभी नहीं, नोट्स नहीं है मेरे पास। ओ नोट्स नहीं है, नोट्स होने तो तुम बोल पाते थे। यस सर। तुमको एक बुक्स दे देंगे एग्जाम का दिन, तुम लोग का फिजिकल भाइबा हम लेंगे, और एग्जाम का दिन बुक दे देंगे तुम लोग को, जितना सारा बुक्स जितना सारा नोट्स, और हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा नहीं सर, ऐसा नहीं कीजिएगा। है। ओपन बुक एग्जाम तो कितना बार कितना स्टूडेंट को करवाया। 5 क्वेश्चंस, हर एक में नंबर इक्वल होगा तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस। क्या मिलेगा बोलो तो, सब में लड्डू। क्रॉस क्रॉस ही रहता रहेगा, वही एक भी जीरो। नहीं रहेगा। चलो एक इंटरफेसिंग का डायग्राम दिखता है, रेडियो करो जो भी करो, करना तो पड़ेगा ना। राइट डाउन द क्वेश्चंस, ड्रॉ एन इंटरफेस, draw an interface with 8085 and 16K into 8, 16K into 8 RAM, 16K into 8 RAM, assuming starting address of RAM, assuming starting address of RAM starting address of RAM is 8008. Assuming starting address of RAM is 8008. Okay. Using decoder. Using decoder. क्या करना पड़ेगा बोलो? बोलो. बोलो. क्या करना पड़ेगा? सिक्सटीन को 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। 16 into 1K is equal to 16 into 1024 is equal to 2 to the power 4 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 14. Am I right? Clear to everyone? Yes. यस सर। अब लिखो, therefore 14 address line, therefore 14 address lines directly connected, therefore 14 address lines directly connected, therefore 14 address lines directly connected, therefore 14 address lines directly connected.
Okay. Therefore, 14 address lines directly connected. Clear? Yes, sir. Therefore, 14 address lines directly connected. Next, address range for the above questions. Address range for the above questions. शौनक शौनक सर है अच्छे किंतु साउंड नहीं ऑन है आज A15 से A0 address range for the above questions is A15 to A0 right it's clear to all Yes, sir. अभी क्या करना पड़ेगा सर स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोला क्वेश्चंस में स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोला 1000 हाँ 8000 बाइनरी में कन्वर्ट करो एक एक का कितना डिजिट आएगा 4 4 करके तो 8000 4 डिजिट है 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 डिजिट ओके ओके डन यस सर हुआ है कि नहीं सर 2 टू द पावर कितना था 14 14 मतलब A 13 तक 13 से जितना सारा है सारा का सारा 1 कर दो ओके इधर में 1 0 कर दो ओके क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes. so it will be B F F therefore the address range is 8000 H to sorry B F F F H okay it's clear to all Yes, sir. Yes, sir. पिछला दिन तो मैंने रैम का इंटरफेसिंग तो करवाया था
जैसे करवाया ऐसा करो, कोई अलग नहीं है। सिर्फ नैन गेट छोड़ के बाकी सारा पूरा डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ नैन गेट छोड़ के। बोलो। So it is a address decoder from A0 to how much? 13. A13. Very good. Here how much to how much? Here how much to how much? बोलो। कर लो, अटेंडेंस कर लो। Everyone recorded their attendance. Am I audible to all of you, students? Yes, sir. Done. Okay. Okay, so I'm stopping the attendance. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. You may continue, sir. Thank you, Shonak. So 16K into 8, let's say
RAM. All of you do this kind of things? Huh? It is similar, whatever the done in the previous day. इतना दूर तक सब कर पाए हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, there is a a read bar. There is a CS bar. There is a CS bar, and there is a WR bar. CS bar are connected with the CS bar. Write bar connected with a ME MW bar, and read bar connected with ME MR bar. Okay. Complete. Next, these CS bar connected with a previously we are connected with an NAND gate, but now it will be connected with a decoder. Sir, how many address line is left? A02, A13. How much left? 2. 2. A, बोलो नाम बोलो उसका. A14 and A15. A14 and A15. So होगा 2x4 decoder. 2x4 decoder, right? सर A14 में क्या था? A14 में क्या था सर? A14 में क्या है? 0 sir. 0 है? Yes sir. A14 connected with a NOT gate. A15 क्या होगा? Direct. क्यों A15 direct होगा सर? क्योंकि वो 1 है. देखो A15 क्या था? 1. 1 था ना? 1. तो A15 इसीलिए direct connect हो गया. Okay. Then there is a 4 output Y0, Y1, Y2 and Y3. सर क्या वैल्यू था? ओ सॉरी, इधर नॉट गेट नहीं होगा. सॉरी. वो नैंड गेट में नॉट गेट था. इधर में कोई नॉट गेट नहीं होता. इधर डायरेक्ट. इधर दोनों ही डायरेक्ट कनेक्टेड होगा. ठीक है. अभी बोलो वो क्या था? किसके कितना था वैल्यू? 10. 10 था? Yes, sir. Yes, sir. 10 मतलब कितना होता है? 2. 10 मतलब कितना? 2 नहीं. 2 sir. So it will be connected with a Y2. It will be connected with a Y2. Okay. Okay, done. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Can I proceed for the next? Yes, sir. Yes, sir. Next is write down the questions. It's clear to all of you? Yes sir. Draw an interface. Draw an interface. Draw an interface with
2 with 2 TWO2, 2 with 2 8K into 8 ROM, TWO2 8K into 8 ROM with 8085 microprocessor with 8085 microprocessor, assuming sorry, not assuming, using decoder, देखो मैंने इधर स्टार्टिंग एड्रेस नहीं बताया, बताया क्या? स्टार्टिंग एड्रेस जब नहीं बताएगा मतलब यू नो स्टार्टिंग एड्रेस इज ऑलवेज फॉर रोम, और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम ऑलवेज फॉर रोम, स्टार्टिंग एड्रेस ऑलवेज 0000H. It is a starting address of ROM. For RAM, always ending at FFFH. मतलब just reverse side. Ending, it's the ending, it's the starting. RAM FFFF में ending होता है, ROM 0000 से ending होता है. Because you know at reset condition, program counter as set at 0000H. 0000H में program counter set होगा, इसीलिए ROM तुम्हारा you know starting always from 0000H, because reset condition always should be the ROM location. Okay, it's clear to all of you? It's clear to all of you? Yes, sir. Next, कितना रोम है सर इधर? कितना रोम है? बोलो. 8. How many ROMs? Questions में तो लिखे हो. 8 sir. 8 नहीं, 8K into 8 ROM. कितना ROM है? 2 है. पहले जैसे एक ROM बोल रहा था, अभी देखो बोला 2 8K into 8 ROM. 28K into 8 नहीं बोला मैंने. TWO2 8K into 8 ROM. 2 8K into 8 ROM है. इसलिए मैंने बोला 2 8K into 8 ROM. It's clear? ROM कितना है? 2 sir. 2 है. पहले 8K इज इक्वल टू निकालो. 2 to the power 6. 2 to the power 13 आएगा? आया है सबका? आया है सबका? Yes sir. क्या लिखना पड़ेगा? 13 address lines directly connected. Therefore 13 address lines directly connected. Therefore 13 address lines directly connected. Therefore 13 address lines directly connected. Okay, अभी लिखो address range of ROM 1. Address range of ROM 1. Address range of ROM 1.
Address range of ROM1. Okay. नेक्स्ट लिखो A15 से लेकर A14, A13, A12, similarly A11, A10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, on a single line. So basically, स्टार्टिंग एड्रेस रोम का बोला नहीं तो किधर से होगा? मैंने बोला अभी बोलो 00 से 0 इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने से सारा 0 आएगा. ओके, तो 2 टू द पावर कितना आया है? 13. तो A12 तक 12 के बाद 12 के पहले वाला कोई चेंजेस नहीं होगा. 0 0 0 ही बैठ जाएगा. इधर 1 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 1. If that is F, that is F, that is 1, that is 0 0 0 0. Therefore address range of ROM1, therefore address range of ROM1 is equal to 0 0 0 0 to 1 F F F. Address range of ROM1 is 0 0 0 0 to 1 F F F. Okay. Yes sir. Sir, next. इधर में तुम्हारा फर्स्ट ईयर में कितना स्टूडेंट था जब तुम लोग फर्स्ट ईयर में थे? सर 150 या 60 सर 160. ना वो नहीं बोल रहे, मतलब तुम्हारा क्लास में मेरे क्लास में सर 32 या 33. 32 था मान के चलो. तो जब लेटरल एंट्री स्टूडेंट का रोल नंबर होगा तो कितना से शुरू होगा? 33 से. मतलब हमें ऐसा बोल सकते हैं लेटरल एंट्री स्टार्टिंग रोल नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर रोल नंबर प्लस 1. यस सर. मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेटरल एंट्री स्टार्टिंग रोल नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर एंडिंग रोल नंबर प्लस 1. सर फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट भी इंडिकेट करें. हाँ, डिपार्टमेंट तो obviously, so that is I think this is a common for all are for electrical. Yes sir. So similarly ROM2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ROM2 लिखो. स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ROM2 क्या होगा? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ROM2 बोलो 1 FFFH 1 FFFH 1 FFF प्लस 1. ये तो से खत्म हो, ये तो इतना देर तक है. तो नेक्स्ट आएगा तो किधर जाएगा? तुम लोग तो बोला 32 प्लस 1 से 33 से स्टार्ट होगा, तो मैंने तो वही किया. 1 FFF प्लस 1, फर्स्ट ईयर रोल नंबर प्लस 1, फर्स्ट ईयर एंडिंग रोल नंबर प्लस 1. Is it clear or not? Yes sir. Yes sir. So it will be becomes 20008. दिखाना पड़ेगा क्या आगे? एडिशन दिखाना पड़ेगा. मैं पहला दिन बताया था. दिखा दे. दिखा दीजिए सर.
दिखा देते हैं 1f f f प्लस 1 f मतलब कितना 15 15 प्लस 1 कितना 16 16 माइनस 16 कितना होता है 0 कैरी 1 15 plus 1 16 again 16 minus 16 0 again carry 1 15 plus 1 16 16 minus 16 0 1 plus 1 is equal to 2 बेस 16 इसलिए 16 सब्सट्रैक्ट होता है मैं पहला दिन का पहला क्लास देखो ओके Yes, sir. अभी लिखो एड्रेस रेंज ऑफ रोम 2 एड्रेस रेंज ऑफ रोम 2 A15, A14, A13, A12, A11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. सर किधर से स्टार्टिंग है रोम 2? किधर से स्टार्टिंग है अभी तो लिखे हो तुम लोग स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम 2 क्या है 1FFFH plus 1 ना सर है तो क्या क्या आया 2000H तो 200 का बाइनरी में कन्वर्ट करो 0010 देन सारा 0 ओके कंप्लीट कंप्लीट yes sir अभी सर 2 टू द पावर कितना आए थे 13 यस सर तो A12 तक अनचेंज होगा 0 0 1 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 F F एक 1 कम दे दिया F 3 2 0 0 0 therefore the address range is 2000 to H 3F F F 3 F F F H okay clear यस सर yes sir नेक्स्ट अभी डायग्राम कैसे होगा डायग्राम का स्ट्रक्चर ऐसे होगा इधर होगा रोम 1 8K into 8 रोम 1 इधर होगा 8K into 8 रोम 2 अभी इसके साथ जो जो जोड़ना है जोड़ दो फटाफट देर मत करो एड्रेस डिकोडर आउटपुट बफर एड्रेस डिकोडर आउटपुट बफर एड्रेस बस कितना से कितना कनेक्ट होगा बोलो 0 to 12 A0 से लेकर A12 तक इधर में भी A0 से लेकर A12 तक ओके
कंप्लीट। इधर में क्या होगा, D0 से लेकर T7 तक, D0 से लेकर T7 तक। ओके, इधर में क्या क्या होगा, RD बार, सॉरी OE बार एंड CS बार। RD बार कनेक्टेड विथ, OE बार कनेक्टेड विथ, किसके साथ बोलो, OE बार किसके साथ कनेक्ट होता है, बोलो, बोलो। OE बार किसके साथ कनेक्ट होता है, इतना रॉम इंटरफेसिंग किया। OE बार और रीड बार किसके साथ कनेक्ट होता है, अभी तो किया पिछले डायग्राम में भी। MEMR बार, MEMR बार, ACS बार। अभी इधर डिकोडर ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना एड्रेस बस बचा हुआ है सर, ये 12 तक लगे हैं, कितना बचा हुआ है, 3 सर, हाँ? 3 बचा हुआ है सर। क्या नाम है उसका, A13 A14 A13 A14 A15। हाँ, ABC A13 A14 A15। क्या डिकोडर है, 3x8 डिकोडर, 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट होगा। Y0 Y1 Y2 सिमिलरली अप टू Y7, राइट। अभी CS बार ROM 1 का चिप सिलेक्ट क्या है, बोलो तो, ROM 1 का चिप सिलेक्ट क्या है, 3 सर। हाँ? क्या होगा, ROM 1 का चिप सिलेक्ट क्या है, वैल्यू क्या है, चिप सिलेक्ट का वैल्यू क्या है, 3 सर। 3 0 0 0 0 0 0 मतलब क्या होता है, चिप सिलेक्ट का वैल्यू 0 0 0 मतलब क्या है, 0 0 0 मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में करने से और डेसिमल में करने से 0 होगा, कनेक्टेड विथ Y0। सर ROM 2 का चिप सिलेक्ट का वैल्यू क्या है, 0 हाँ? 0 1 0 0 1 मतलब क्या है, 1 कनेक्टेड विथ Y1। डन। यस सर। अभी तुम लोग बोलो, जो सर ऐसा 8 के कितना चिप लगा सकते हैं, कितना बचा हुआ है, और कितना बचा हुआ है, Y2 से Y7 कितना बचा हुआ है, 2 तो लगाया 6 और 6 बचा हुआ है, और 6 तो बचा टोटल हुआ है। कितना चिप लगा सकते थे 8 के, 6 प्लस 2, ये तो 2 लगा हुआ है, टोटल 8 लगा सकते हैं, 8 लगा था सर। यस सर। 8 लगा सकते हैं, तो 8 के इंटू 8 मतलब कितना होता है, 8 के इंटू 8 से 8 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 64। टोटल मेमोरी कैपेसिटी इसके ये हो सकता है, इसी के लिए ही मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। इसका भी एक होम असाइनमेंट देंगे, वो भी कर देना। 3 होम असाइनमेंट हो गया, नेक्स्ट वीक में सब देखेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक, ভালো করে अच्छा करके एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्वेश्चन अच्छा से कीजिएगा सर, हैं? क्वेश्चन अच्छा से कीजिएगा सर, सुनाई नहीं दिया, क्वेश्चन अच्छा सेट कीजिएगा सर। सुनाई नहीं दिया, सर पूछ रहा है क्वेश्चन अच्छा से सेट कीजिएगा। सुनाई नहीं दे रहा है, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा से मतलब क्या है? The easy questions. इजी क्वेश्चंस। हम उसी दिन तो बोला ना थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उस दिन थोड़ा ज्यादा जानते हैं। चाईबासा पास्ट हाउस फर्स्ट बैच के किसी को पहचानते हो? कोई इधर में Sir. किसको पहचानते हो? अंजलि किसी को पहचानते हो? फर्स्ट बैच का 2013 पास आउट, Sir. उसको पूछ लेना, ठीक है? हम क्वेश्चंस कैसे करता है और भाईबा में कितना रोता है बच्चा लोग, ठीक है? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यस सर। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छा से एग्जाम दो। थैंक यू भी सर। अच्छा ही होगा सब। सर। बाय बाय, थैंक यू सर। गुड बाय फॉर बाय टुडे। सर। बाय सर। बाय बाय।